last कल के lecture में I was not able to continue the lecture, so I think so मैं restricted to that lecture, and before that suddenly electricity has gone, so पूरा internet connection down हुआ, so I'm sorry for that. Now let's move here with the solid state. सॉलिड स्टेट के बारे में पहले लेक्चर में हमने डिस्कशंस किया था कि व्हाई वी नीड टू डिस्कस द सॉलिड स्टेट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर, है ना. सो इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट. What is the definition of solid, what are the comparative properties of solid, liquid and gaseous one, and what are the types of solids. That is the part which is called as the introductory part. The middle part is related with the core concept related with solids, and last part is related with the properties and its application. So that is what we discuss here in this chapter. पहले जो दो लेक्चर हो चुके हैं उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि solids has two main types, crystalline solids and amorphous solids, and here in the chapter we have to discuss only crystalline solids, not the amorphous solids. So we have discussed crystalline solids. इसके अंदर हमने crystalline solid का definition देखा, what are isomorphs, what are polymorphs, what is isotropy, what is anisotropy. These are the concepts we have discussed here in this chapter initially. Furthermore, we have seen crystalline solids even classified into 4 categories, and we have seen their comparative studies. What is molecular solids, what is ionic solids, what are equivalent solids, and what are metallic solids. So these properties what we have discussed here in this chapter. ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. Then उसके अंदर हमने जो comparative studies किए थे उसके साथ उनके हमने कुछ special property भी डिस्कस किए थे, जैसे कि molecular solids के अंदर polar molecular solids, non-polar molecular solids, है ना, hydrogen bonded molecular solids ये आते हैं, उनके examples हमने डिस्कस किया. उसी तरीके से कोवेलेंट सॉलिड के अंदर भी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, मतलब खास करके 3 उसके डिफरेंट एग्जांपल्स, दैट इज ग्राफाइट, डायमंड एंड फुलरी, जिसके ऊपर एग्जाम में 2 या 3 मार्क का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है. पिछले कई सालों में 2-3 बार वो पूछा गया है. और उसके बाद मेटलिक सॉलिड की जो प्रॉपर्टी हम जानते थे पहले से, उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके उसके अंदर हमने व्हाई मेटल शोज द मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी व्हेन शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड. दैट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट पार्ट, दैट लेक्चर. Furthermore, we have gone next with the core concept of this chapter is nothing but the unit cell. ठीक है, और यूनिट सेल जैसे हमने स्टार्ट किया थोड़ा सा लेक्चर इंटरप्ट हुआ था, तो आज वापस उस टॉपिक को हम चलते हैं बिकॉज़ इट इज अ वेरी कोर कांसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यू कैन से यूनिट सेल. सो लेट्स मूव अगेन टू द यूनिट सेल. नाउ वी नो every solid has the smallest structure that is called as a unit cell. जिस तरीके से दीवार के अंदर ईंटें होती है उसी तरीके से किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर छोटा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं. यूनिट सेल इज smallest repeating structure throughout the crystal lattice. Throughout the crystal of the solid is called as, you can say, unit cell. Atoms, molecules or ions, these are all together called as particles. हम जब solid state में particle word use करते हैं तो that particle means atoms, ions or molecules. कुछ भी हो सकता है उसका meaning. So in that sense, these atoms, ions or molecules that we call as particles, these particles come closer and they forms a geometrical shape, particular geometrical shape, and that geometrical shape, the smallest one, which is repeated throughout the crystal lattice, is called a unit cell. So we have seen definition of unit cell. Unit cell is the smallest repeating structure throughout the crystal lattice, is called a unit cell. We have seen the diagram of typical unit cell. वापस मैं उसको एक बार repeat करना चाहूँगा. So unit cell, we have to discuss first typical unit cell. तो उसके अंदर हमें देखिए एक cube-like structure draw किया था. This is cube-like structure. और ये टिपिकल यूनिट सेल थोड़ा सा अच्छे समझेंगे तो बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. ओके, दिस इज यूनिट सेल. दिस इज अ पिक्चर ऑफ टिपिकल यूनिट सेल. नाउ कंसीडर दिस पार्टिकल. दिस इज द पॉइंट. अभी एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन्स इज रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. ओके, लैटिस पॉइंट. लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सप्रेस लैटिस का डायग्राम भी ड्रॉ किया था और यूनिट सेल का भी डायग्राम ड्रॉ किया था. ठीक है, सो let us consider this is the particle. This is a particle. So यहाँ पे particle है. This is this depth. Depth is called as A. Depth is called as A. This width is called as B, and height is called as C. Okay. So being this is a cubical structure, it has a depth which is denoted by A. It has a breadth which is denoted by B, and it has a height which is denoted by C. Angle between B and C is called as alpha. This is alpha. Angle between C and A is called as beta, and angle between A and B is called as gamma. This is gamma. So ये इसके अंदर. अब देखिए, unless and until आप इसे क्यूब जैसा इमेजिन नहीं करते हो, तब तक आपको नहीं समझेगा कि what's happening here. So what I expect that you will imagine this cube-like structure
बोर्ड पे तो मैंने निकाला है कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। ये पीछे का कॉर्नर है, ओके, ये फ्रंट फेस ये दिखता है और ये बैक फेस दिखता है इस क्यूब का। दिस इज द पॉइंट फॉर द लैटिस पॉइंट, जहाँ पे एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। और यहाँ पे इसका जो डेप्थ है दैट इज डिनोटेड बाय a, breadth is denoted by b, and height is denoted by c. Bond angle between b and c is alpha. Then you can say a and c is beta, a and b is called as gamma. So this is gamma. So here suppose अगर हम मानते हैं ये क्यूब है, तो there is a depth a, breadth b, and height is c. Whereas bond angles are alpha, beta, and gamma. These are the bond angles. Here. Now, if it is a cube, then cube के अंदर length is equal to breadth is equal to height. So in that sense you can say A is equal to B must be equal to C. किसी भी क्यूब के अंदर कंडीशन नहीं होता है, because length, breadth and height किसी भी क्यूब के अंदर सेम होता है। अगर हम मानते हैं कि ये टिपिकल यूनिट सेल है और उसको अगर क्यूब मानते हैं तो A must be equal to B must be equal to C. And अगर ये क्यूब है तो अल्फा must be equal to beta must be equal to gamma must be equal to 90 डिग्री। तो किसी क्यूब के अंदर किसी भी दो प्लेन के अंदर का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट मस्ट बी 90 डिग्री। सो दिस व्हाट वी कैन से, ये हमारा यूनिट सेल है जो टिपिकल यूनिट सेल है। ओके, नाउ दिस इज द टिपिकल यूनिट सेल एंड दिस इज द पर्टिकुलर एग्जांपल ना, दिस इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ द क्यूब आई हैव गिवन। जरूरी नहीं कि ये सारे इसी कंडीशन, ये सिर्फ क्यूब में ही इक्वल हो सकता है, बट दिस इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल यूनिट सेल व्हिच हैज द डेप्थ, ब्रेड्थ एंड हाइट, मतलब यू कैन से लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऐसा बोल सकते हो। नाउ there is a one mathematician called as a Bravis mathematician. He calculated all the possibilities. How many types of these unit cells are possible in any of the solid? दुनिया भर के कई सारे सॉलिड का उसने स्टडी किया और वो सारे सॉलिड का स्टडी करने के बाद he come to the conclusion कि how many types of these unit cells are possible, and he found that there are mainly 7 types of unit cells. देखिए mainly there are 7 types of unit cells and including subtype. So including subtypes and main types, we got 14 types of unit cells. Okay, we got 14 types of unit cells. So this is very important that mathematician Bravis calculated all the possibilities and he found that mainly 7 types of unit cells are possible. Or including the subtypes and main types, we got 14 types of unit cells. अभी ये types किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टाइप डिपेंड करते हैं इस कंडीशन के ऊपर. What is length, breadth and height? What is alpha, beta and gamma bond angle? Because that may change. और इसके सारे पॉसिबिलिटीज में चेक करने के बाद पता चलता है कि देयर आर ओनली 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? तो अभी देखते हैं वो कौन से यूनिट सेल होते हैं। हम अगर डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम्स ऑलमोस्ट इसी टाइप का आएगा, क्योंकि हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बहुत चेंजेस नहीं दिखा देंगे, जरूर होते अलग है, लेकिन हम ड्रॉ करते समय वो डायग्राम अलग अलग नहीं समझ पाएंगे लोग, इसीलिए ये कंडीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब साइंटिफिकली दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेन जो टाइप्स आते हैं क्या लोग, सबसे पहला जो आता है यू कैन से हियर दिस इज क्यूबिक। ओके, क्यूबिक यूनिट सेल। मैं प्रोसेस से हटाता हूं कि आई नीड मोर स्पेस। सबसे पहला क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा यू कैन से ऑर्थोरोम्बिक। तीसरा टेट्रागोनल। फोर्थ वन is you can say monoclinic. Fifth one that is called as a triclinic. Sixth one rhombohedral. And seventh one is hexagonal. These are the mainly 7 types of unit cells. Be clear now? There are mainly 7 types of unit cells: cubic, orthorhombic, tetragonal. अभी सबके आगे unit cell लगाना है. Cubic unit cell, orthorhombic unit cell, tetragonal unit cell, monoclinic unit cell, then triclinic unit cell, rhombohedral unit cell, and lastly you can say hexagonal unit cell. ठीक है? मैं आपको सूचित करना चाहूंगा heavily raining as of now also. हो सकता है अगर कभी इंटरनेट कनेक्शन चला जाएगा, अगर बहुत जल्दी चला जाएगा तो आई विल री-लॉग इन, अगर थोड़ा लेटली हुआ तो विल स्टॉप द लेक्चर. ओके, सो अराउंड 9:40 and all. So okay, so now we are discussing these are the types of unit cell, mainly types of unit cell. Now when we are talking about cube, अगर ये क्यूब का डायग्राम है तो कंडीशन हैज टू बी लाइक दिस वन. सो किसी भी क्यूब का एक कंडीशन होगा तो हियर यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी पहला a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये पहला कंडीशन है. दूसरा होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज द कंडीशन.
ये कंडीशन है क्यूब का, ठीक है। अभी अगर हम लोग ऑर्थोनोमिक के अंदर आते हैं तो ऑर्थोनोमिक के अंदर क्या होगा कि हाइट बदलता है। तो आप देखिए ऑर्थोनोमिक में कंडीशन होता है ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा मस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। बस देखिए अभी ये दोनों कंडीशन में एक फर्क होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू सी था, a is equal to b is equal to c था, इसके अंदर a is equal to b but d is not equal to c, मतलब हाइट या तो ज्यादा है या तो हाइट कम है। a और b सेम है लेकिन हाइट या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। मानो लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकता है या 10 सेंटीमीटर से कम हो सकता है। दैट इज यू कैन से हाइट इज डिफरेंट। बॉन्ड एंगल सेम रहेंगे बिकॉज़ इट्स एन ऑर्थोनोमिक ज्योमेट्रिकल शेप। टेट्रागोनल की बात करते हैं तो टेट्रागोनल में a is not equal to b is not equal to c, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट भी अलग है, but you can say alpha is equal to beta is equal to gamma must be 90 डिग्री। ये पहले तीन याद रखने में आसान है। क्यूबिक में सारे सेम है, यहाँ पे b is not equal और यहाँ पे कोई इक्वल नहीं है, बट बाकी बॉन्ड एंगल सबका सेम है। ओके, ये होता है। When we come to monoclinic, monoclinic में देखिए A is not equal to B is not equal to C. Alpha is equal to gamma is equal to 90 degree, but beta is not equal to 90 degree. ऐसा अल्फा और gamma 90 डिग्री होती है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता है इसके अंदर, मोनोक्लिनिक के अंदर। और A is not equal to B is not equal to C ऐसा है। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा केस है, ट्राइक्लिनिक के अंदर A is not equal to B is not equal to C, whereas alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 डिग्री। ऐसा कोई किसके साथ इक्वल नहीं है। ये ट्राइक्लिनिक का कंडीशन ऐसा है कि लेंथ भी एक जैसा नहीं किसी का या फिर बॉन्ड एंगल भी किसी का एक जैसा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइक्लिनिक। रोम्बोइडल के केस में देखते हैं तो a is equal to b is equal to c, alpha is equal to beta is equal to gamma but not equal to 90 डिग्री। अल्फा बीटा gamma एक जैसे हो सकते हैं but not equal to 90 डिग्री। दिस इज द कंडीशन इन रोम्बोइडल। Or when we are talking about hexagonal condition, that is you can say A is equal to B which is not equal to C, not equal to C, but you can say alpha is equal to beta, alpha is equal to beta is equal to 90 degree, gamma is 120 degree, gamma is 120 degree. This is the condition, this is the condition what we have to recall. तो अब देखिए there are mainly 7 types, but हम 7 types किस आधार पर देखेंगे कि how we can will comes to do that. There are mainly 7 types of universals, so this condition has to remember recall. देखिए आपके बुक के अंदर ये conditions नहीं दिया है, मतलब हमारा जो अभी का बुक है उसके अंदर नहीं दिए, but when we are talking about NEET और JEE part ये याद रखना पड़ेगा because when we are to make a diagram for all this one it will almost appear similar appear होगा. So how will differentiate based on this scientific data, that is cube के अंदर A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree, whereas orthonomic के अंदर condition है A is equal to B which is not equal to C, alpha beta gamma is equal to 90 degree. टेट्रागोनल के अंदर कंडीशन है A is not equal to B is not equal to C but alpha beta gamma is equal to 90 degree. मोनोक्लिनिक के अंदर A is not equal to B is not equal to C but alpha gamma 90 degree, beta is not equal to 90 degree, beta 90 से कम या ज्यादा दोनों भी हो सकता है। ट्राइक्लिनिक में nothing is equal, A is not equal to B is not equal to C as well, alpha is not equal to beta is not equal to gamma which is not equal to 90 degree, अलग अलग हो सकता है। रोम्बोहेड्रल के अंदर सारे साइड्स एक जैसे होते हैं, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma, सारे इक्वल है but they are not equal to 90 degree, 90 से कम होंगे या 90 से ज्यादा होंगे, that is। and hexagonal जो हम hexagon जानते हैं, that is you can say A is equal to B is equal, B is not equal to C but alpha beta 90 degree, gamma is not equal to 90, that is 120, वो 120 होता है, उससे ज्यादा कम भी नहीं होता, that is what we can say। अभी इनके डायग्राम बुक के अंदर दिए हैं, हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग, मैं उसमें से सिर्फ आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, सारे कर सकते हैं बट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन ड्राइंग द डायग्राम्स। ओके, स्टेट बोर्ड एग्जाम में डायग्राम पूछे जा सकते हैं, नो डाउट एट ऑल, मतलब बहुत कम बार ये टॉपिक पूछा गया है बट ये जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट उस तरीके से आता है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी ये जो 3 डायग्राम दिखाएंगे ऑलमोस्ट वैसे थे, या तो हाइट कम करना है या तो हाइट छोटा करना है, तो इसलिए 3 डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल की टोटली अलग है, मतलब ये 3 डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं, कंडीशन डिफरेंट है। ये डायग्राम देखिए हेक्सागोन कैसा निकाल सकते हैं हम लोग, सो दिस इज यू कैन से
This is so here. This is example. This is example. ये हमारा hexagon का डायग्राम है. ये hexagonal डायग्राम है. जिसके अंदर देखिए A is equal to B. ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हाइट डिफरेंट है. तो A is equal to B, हाइट डिफरेंट हो सकता है. Alpha beta 90 degree, but gamma not 90 degree. See, this is the gamma. This is the gamma, which is not 90 degree, which is 120 degree. So this is the diagram of hexagon. You can see hexagon का डायग्राम है, निकाल सकते हैं hexagonal तरीके से. तो ये डायग्राम है. बाकी सारे डायग्राम आप थोड़ा सा बुक में देखेंगे तो you can have the practice with this one. ये सारे डायग्राम क्लियर है. Now ये रहे मेन 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. बट इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है क्यूबिक. ओके, ये बाकी सारे हम लोग हायर स्टडीज में डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ क्यूबिक डिस्कस करना है. और ये सब देखते हैं हम लोग. तो क्यूबिक के आपको 3 टाइप मिलते हैं. क्यूबिक के 3 टाइप मिलते हैं. ऑर्थोगोनल के आपको 4 टाइप्स मिलते हैं. टेट्रागोनल के आपको 2 टाइप्स मिलते हैं. फिर इसका आपको एक 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 और एक मिलता है. तो 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी यहाँ पे 2 आएंगे. एंड सेंटर मोनोक्लियर के अंदर एंड सेंटर आता है. एंड बेसिस. तो देखिए 7 ये 4 और 3 7 कुल मिला के 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आते हैं. अभी ये जो है ना ये सब टाइप्स है. क्यूबिक के अंदर आपको 3 अलग-अलग टाइप्स मिलते हैं. वो कौन सा है? दैट इज व्हाट वी डिस्कस बिकॉज़ दिस आर द मेन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और मेन देयर आर ओनली 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. हियर सो लेट्स मूव टू द सब टाइप जो होता है. सो व्हाट आर द सब टाइप्स वो हमें डिस्कस करना है. हियर सो लेट्स मूव टू सब टाइप्स. खास करके क्यूबिक क्या सब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 3 होते हैं. नंबर 1 इज यू कैन से सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल व्हिच इज कॉल्ड एज एससीसी और ओनली एससी. दूसरा यू कैन से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल दैट इज बीसीसी. तीसरा फेस सेंटर. फेस सेंटर इधर दिखाता हूँ. तीसरा यूनिट सेल दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एफसीसी. और ये एंड सेंटर और बेस सेंटर. ओके, these are the 4 मैक्सिमम सब टाइप्स जो कि हमें ऑर्थोरोम्बिक के अंदर मिलते हैं. ठीक है, मैक्सिमम 4 टाइप्स मिलते हैं. लेकिन हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमें 3 ही मिलते हैं. और कौन से 3 मिलते हैं? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ये उसके अंदर नहीं मिलता. ये आपको मोनोक्लिनिक के अंदर मिलता है. ओनली मोनोक्लिनिक के अंदर. ठीक है. सो इन दैट ये 4 सब टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं. जैसे मेन 7 टाइप्स हम लोगों को 7 मिलते हैं और उनके सब टाइप्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम 4 मिलते हैं. लेकिन वो सिर्फ एक के अंदर है, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक के अंदर. बाकी सब के अंदर जो हम लोगों को मिलता है 3 2 एक ही मिलता है. ये जो है सिंपल आल्सो नोन एज प्रिमिटिव. दिस इज पॉसिबल इन ऑल ऑफ द 7 टाइप्स. सब के अंदर ये मिलता है प्रिमिटिव. ओके, बाकी अलग अलग मिलता है. जो हमने लिखा था नंबर 4 3 तो उसी हिसाब से वो मिलता है. हियर नाउ किसे कहते हैं ये सिंपल बॉडी सेक्टर? उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बिकॉज़ वी हैव डिस्कस्ड दिस. दैट इज तो सिंपल क्यूबिक यूनिट से देखिएगा. अभी जो हमने क्यूब निकाला था थोड़े छोटे डायग्राम निकालता हूं मैं बिकॉज़ स्पेस कम है. सो दिस इज यू कैन से अभी यहाँ पे देखिए द इमेजिनेशन पावर मैटर्स अ लॉट. यहाँ पे दिस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना. और यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक पार्टिकल माना जाता है. तो दिस पार्टिकल अभी देखिए हम एक क्यूब बात करते हैं तो क्यूब के बारे में जानकारी लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे जो डायग्राम डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये बार बार आएगा. इस क्यूब के अंदर हाउ मेनी कॉर्नर्स दिस क्यूब हैज? इस क्यूब के अगर कॉर्नर्स की बात करते हैं इट हैज 8 कॉर्नर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. It has 8 corners. Every cube has 8 corners. How many faces it has? It has 6 faces. It has 6 faces. ये front face है, उसका back face है, top, bottom, left and right like this. So ये सारे आपको मिलते हैं. There are 6 faces. Every cube has 6 faces.
हाउ मेनी एजेस, एज क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, वेयर टू प्लेन मीट्स ईच अदर। देखिए ये प्लेन, दो प्लेन मीट कर रहे हैं, अभी हम ऐसा भी डायग्राम देख सकते हैं, दो प्लेन है, ये वाला प्लेन है और ये इस टाइप का प्लेन है, इस टाइप, ये ऐसा करो तो प्लेन आ जाता है। जहां पे दो प्लेन मिलते हैं दैट इज कॉल्ड एज। तो ये देखिए ये वाला जो फेस है इस तरफ का और यहाँ का फेस ऐसा मिलता है, सो दिस इज कॉल्ड एज। तो इट हैज 12 एजेस, 12 एजेस आते हैं, देखिए 1 2 3 4, ये ऊपर 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, 4 3 are 12। So every cube has 12 edges, 6 face and 8 corners, 8 corners होते हैं। तो ये क्यूब की खासियत होती है, every cube has this one। तो इसके अंदर भी दिखाई देते हैं आपको, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स अगर इसे मानते हैं तो it has like that, it has 8 corners, whereas 6 faces and 12 edges where the two planes meets, that is called as edges। ठीक है। और यहाँ पे देखिए when it is called as simple cubic unit cell, simple cubic unit cell में क्या होता है, there are 8 particles which are present on the 8 corners of the cube। how many particles are there? There are 8 particles which are present at the 8 corners of the cube, that's all। this is the simple cubic unit cell, also called as primitive cubic unit cell, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल है, बाकी कुछ है नहीं है। let's go to body centered cubic unit cell। when we are talking about body centered cubic unit cell, so we'll have the almost similar diagram। so this is ओके। आगे ये भी क्यूब स्ट्रक्चर है, हर कॉर्नर पे तो पार्टिकल होना ही होना है, सो दिस इज कैन से because it has 8 corners, so 8 particles are present on the 8 corners, but being it's a BCC body center, one of the particle is present in the body, इसका जो सेंटर है एकदम सेंटर में यहाँ पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अब देखिए इमेजिन करना है, ये फ्रंट फेस है, दिस इज फ्रंट फेस और ये वाला बैक फेस है, दोनों फेस के बीच में लाइक दैट, तो ये पार्टिकल सेंटर में एग्जैक्टली मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई this one of the particle is present in the body of the cube, bulk of the cube, and that's why it is called a body centered cubic unit cell। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, इसमें particles are present only at the corners, here particles are present at the corners, 8 particles present on the 8 corners, as well one of the particle which is present in the body of this cube, and that's why this is called as a body centered unit cell, being one particle is present in the body, that is in the bulk, become center में present होता है, and that's why it is called as a body center। Okay, when we are talking about end center, अभी end center का डायग्राम देखिए आप लोग, see these are the corners जहाँ पे पार्टिकल्स आपको प्रेजेंट मिलते हैं। ओके, कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे प्रिमिटिव लाइन, लेकिन एंड सेंटर यहाँ पे अपर फेस पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है और बॉटम फेस पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, दो पार्टिकल। देखिए इसमें सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल थे, इसमें पार्टिकल कॉर्नर एज वेल एज बॉडी भी प्रेजेंट है, इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, लेकिन एक अपर फेस पे लोअर फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है, सो दैट इज यू कैन से दिस आल्सो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अंदर थोड़ा सा इमेजिन प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें देखिए कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट होने ही हो रहे हैं, बिकॉज इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो होने ही होने। ओके, नाउ एज द नेम सजेस्ट, इट इज कॉल्ड एज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस बाद में हाउ मेनी फेसेस दिस क्यूब हैज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इट हैज 6 फेस, हर फेस पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो देयर आर 6 फेसेस, मींस देयर मस्ट बी 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द 6 फेसेस। सो पहले इधर का फेस देखते हैं, इसके पार्ट सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है, फिर ये तरफ का लेते हैं, यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है, सो लेफ्ट राइट, फिर टॉप पे चलते हैं, यहाँ पे बॉटम में आते हैं, दिस इज बॉटम फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो बॉटम फेस पे आएगा। अभी बचा है फ्रंट एंड बैक फेस। ओके, सो दिस इज द फ्रंट फेस का सेंटर यहाँ पे आएगा और बैक फेस का सेंटर यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे unless and until we imagine it, we won't be able to find out how these particles are present here in this one। So as the name suggests, बहुत easy है, बहुत simple है याद रखने के लिए, because नाम से ही पता चलता है। Simple cubic unit cell, also known as primitive cubic unit cell। इसके अंदर क्या होता है, particles are present on the corners, it has 8 corners, so 8 particles are present on the 8 corners of the cube, that's all। Body centered unit cell, so that's why here 8 particles are present on the 8 corners, as well as one of the particle is present in the body of this cube, that is you can say BCC। End center, also known as base center, कुछ जगह आपको end center नाम मिलेगा, कुछ जगह आपको base center नाम मिलेगा। बेस है ना, ये बेस है, टॉप है, लाइक दैट बेस सेंटर बोला जाता है।
So it has 8 particles present on the 8 corners, as well as 1 particle is present on the base face and 1 particle is present on the upper face of this unit cell, and that's why it is called as a base centered or end centered unit cell. As the name suggests, face centered unit cell. 8 particles are present on the 8 corners of this cube, as well as on each and every face lies 1 particle. So being it has a 6 faces, there are 6 particles which are present on this cube. Clear with this? So that is what we can say. So these are the subtypes जो possible हो सकते हैं. लेकिन अभी देखा मैंने mainly there are 7 types: cubic, orthorhombic, tetragonal, monoclinic, triclinic, rhomboidal and hexagonal. Out of that इस chapter में हम सिर्फ cubic discuss करेंगे. और cubic unit cell की conditions क्या है? A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. This is the condition of, you can say, cubic unit cell. और इस cubic unit cell के 3 types होते हैं. क्यूबिक यूनिट सेल के 3 टाइप्स होते हैं. ये उसके अंदर नहीं होता, ये उसके अंदर नहीं होता. क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ये 3 ही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो पढ़ते समय पढ़ेंगे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अभी देखिए हम जनरल कह रहे थे सब टॉपिक्स. तो सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. व्हेन इट इज एप्लीकेबल टू क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. पहले था सिंपल यूनिट सेल, अभी बन गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. पहले था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अभी बना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूब में उसका क्या बनता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. क्लियर विद दिस? एंड कंडीशन तो हम सबके जानते हैं, अल्फा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों में भी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. These are the 3 unit cells present in simple in cubic unit cell. Okay, तो unit cell क्या होता है? Smallest repeating structure throughout the crystal lattice is called as unit cell. और ये जो unit cells होता है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं. एक तो एज लेंथ एंड बॉन्ड एंगल. And mathematician Bravis calculated there are mainly 7 types of unit cells possible, जो cubic, orthorhombic, tetragonal, then monoclinic, triclinic, rhomboidal and hexagonal. Whereas उनके अंदर भी सब टाइप्स मिलते हैं जो 4 टाइप्स के पॉसिबल होते हैं: सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड. नाउ इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल डिस्कस करना है आउट ऑफ दैट 7. और क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 3 आते हैं: सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब ये रिपीट करने का कारण क्या है? आज मैं काफी रिपीट कर रहा हूँ, काफी स्लो कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन. अभी आगे का इस चैप्टर का 30% पार्ट सिर्फ इन्हीं तीनों यूनिट सेल के साथ कंसर्न है. 30% पार्ट ये तीनों यूनिट सेल्स के बारे में कंसर्न है. और वो क्या आता है देखिए. नंबर वन वी हैव टू डिस्कस मेकिंग ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मेकिंग ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड मेकिंग ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. दूसरा देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, तीनों का भी, इसका अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका अपना है, इसका अपना है, तीनों का भी कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करना है. 4 नंबर ऑफ एटम्स, और एटम्स के बदले हम लोग कह सकते हैं पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हिच दिस इज मेड अप. तो ये जो हेडिंग्स है, और लास्ट वाला जो है ये थर्ड है, फोर्थ, दैट इज यू कैन से डेंसिटी या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. नाउ दीस आर द 4 हेड्स. और एग्जाम में इस चैप्टर में बोर्ड की बात करते हैं तो यही 4 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए यही 4 हेडिंग्स के अंदर पूछे गए. और ये चारों हेडिंग इसके लिए भी एप्लीकेबल है, चारों हेडिंग इसके लिए भी एप्लीकेबल है, चारों हेडिंग इसके लिए भी एप्लीकेबल है. अब पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे देखिए. डिस्कस द मेकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, डिस्कस द मेकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, डिस्कस द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ये 4 है, वही 4 हेड वापस इसके लिए लागू होते हैं. पढ़ते समय कैसा पढ़ेंगे? मेकिंग ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. और सेम वापस इसके लिए उसी तरीके से वो पढ़ना है. समझ रहे हैं आप लोग? और हमारा यही पार्ट मेन है, इसके अंदर अभी मेकिंग क्या होता है ये डिस्कस करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो डिस्कस करना है, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है वो डिस्कस करना है, और डेंसिटी डिस्कस करना है. ये तीनों यूनिट सेल्स के बारे में. तो यही डायग्राम, 3 डायग्राम है, बार-बार ड्रॉ करने पड़ते हैं इस चैप्टर के अंदर. ओके, सो मैं अभी क्या करूंगा, ये तीनों डायग्राम आपके साथ ड्रॉ किया
पहला टॉपिक तीनों का साथ में कवर करता हूँ, ठीक है। फिर बाद में जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके साथ कोऑर्डिनेशन, नंबर ऑफ एटम्स एंड डेंसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए 3D डायग्राम निकालना पड़ता है, 3D डायग्राम के साथ वो क्लियर हो जाएगा ना। आज के लेक्चर में इतना हो जाएगा कि व्हाट इज मेकिंग ऑफ दिस थ्री ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू मेकिंग। बहुत सिंपल है, मतलब कैसे बने हुए हैं, हाउ वी कैन मेक इट, हाउ दे आर मेड अप ऑफ। सो दैट इज व्हाट वी डिस्कस हियर इन दिस वन। जैसे मैंने बताया कि सिंपल कोई भी क्यूब होगा तो क्यूब के बारे में 3 तो पॉइंट देखे हमने। एवरी क्यूब हैज 8 कॉर्नर, every cube has 6 faces and every cube has 12 edges। बस वही डिस्कस करना है इसके अंदर। मेकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या आएगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 8 corners and 8 particles are present at the 8 corners of simple cubic unit cell. Back rest it has 6 faces and 12 edges. That's all, nothing more than this. Here, how the making of this body centered cubic unit cell is there? Body centered cubic unit cell consists 8 particles at the 8 corners of the cube. Second, whereas one of the particle is present in the body of the cube. Okay, baki rest 6 faces and 12 edges same. That is, you can say making, or making of, you can say face centered cubic unit cell. So face centered cubic unit cell के अंदर making क्या होता है? So here it has 8 corners and 8 particles are present on the 8 corners of the cube, whereas on each face of this cube one particle is present. That means 6 particles are present on the 6 faces of this cube. That's why this is called a face-centered cubic unit cell. That is the making. और एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं और फिर उसके बाद उनका मेकिंग लिखना है। ओके, ये उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि आज तक एग्जाम में मेकिंग के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, बट मेकिंग अंडरस्टैंड होगा तो ये 3 टॉपिक अंडरस्टैंड होंगे जिसके बारे में क्वेश्चंस बार बार पूछे गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स से पूछे गए, उसके बाद डेंसिटी की ओर पूछे गए, और कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ पार्ट ऑफ जेई और नीट। कोऑर्डिनेशन नंबर तो लर्न करना है, वो जेई नीट में सबसे बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। और नंबर ऑफ एटम्स एंड डेंसिटी ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वो तीनों के बारे में है। बहुत सिंपल पार्ट है, इजी पार्ट है। ये डायग्राम ड्रॉ करने, इसके अलावा और एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है जो 3 डायमेंशनल डायग्राम में होगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स और डेंसिटी तीनों का हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर विद दिस? अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डायग्राम ड्रॉ किया 3D, उसके बाद ये चारों पॉइंट उसके साथ डिस्कस करेंगे, फिर इसका और फिर इसका। तो कल के लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे। जस्ट विल रिवाइज what we have seen in today's lectures and then we'll end up the lecture. We have seen today unit cell. Every crystalline solid has the smallest repeating structure throughout the crystal lattice, that is called a unit cell. है ना? And mathematician Bravis calculated how many types of unit cells are there because he has drawn a typical unit cell, and this typical unit cell has edges and it has a bond angle between these edges, and he found that all the probable combinations or the permutation combinations he has done, and he found that there are mainly 7 types of unit cell depending upon edge length and bond angle. Okay, and these are nothing but you can say cubic unit cell, then orthorhombic unit cell, then tetragonal unit cell, then monoclinic unit cell, triclinic unit cell, rhombohedral unit cell, and you can say hexagonal unit cell. And if he calculate or he discuss all the possibility of subtypes, he got there are maximum 4 subtypes. That is, you can say simple unit cell, also known as primitive, body centered unit cell, face centered unit cell, and base centered or end centered unit cell. But here in the chapter, we are going to discuss only cubic unit cell, and cubic unit cell has 3 types: simple or body centered cubic unit cell, body centered unit cell, face centered cubic unit cell. And we have to discuss these 4 heads. See you in tomorrow's lecture. Thank you very much, or good night to everyone. Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. Dada.